My apologies for being late in posting this last reasoning question video on amines. I was slightly unwell for the past couple of days, so my apologies again. Unit 13 amines, and this is the session on reasoning question. Just as a backup, there is already a playlist on amines on my channel of Seema Makhijani. You can type Seema Makhijani amines and you will end up into 11 videos if you are not very thorough on the chapter. A detailed video on basic character. Aniline is on a detailed video of aniline ka nitration, bromination, etc. Benzene diazonium salt introduction, preparation, the important reactions of benzene diazonium salt, azodie formation, Hinsberg test for primary, secondary and tertiary amines, IUPAC nomenclature, which I would not say that you should do because IUPAC nomenclature का बेटा कंटेंट सिर्फ 1 या 2 नंबर का आता है पेपर में, उसके लिए उतना ज़्यादा एफर्ट अब तो करने का कोई फ़ायदा नहीं. And there's another one on chemical properties. So in case you're struggling, this is what you have. Now, moving on to the reasoning questions asked in the previous year's board papers of CBSE class 12. Question number 1. When is an amine an optically active compound? Beta, optically active compound के लिए, if you remember, we required a chiral carbon. Chiral carbon is sp3 hybridized and all the 4 attachments should be different. अब एक amine has got this kind of a structure. इसको optically active होने के लिए 4 attachments चाहिए, यानी there has to be a 4th bond, which means I am talking about a quaternary amine. एक quaternary amine में you would have a nitrogen attached to an R group, a different R group, a third R group, and there could be an H bonded. This nitrogen will definitely have a positive charge. Such a compound where nitrogen has a positive charge का मतलब नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी नाइट्रोजन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, and it forms 4 bonds with 4 different identities, is optically active compound. So your quaternary ammonium salts are optically active. The second question which has been asked is, you have to give the hybridization, shape and geometry of amines. Now amines are derived from ammonia. ये है अमोनिया. अमीन कैसे बनता है? रिमूव हाइड्रोजन एंड ऐड द एल्काइल ग्रुप. सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ RNH2, द प्राइमरी अमीन. प्राइमरी अमीन के स्ट्रक्चर पे फोकस करता है. प्राइमरी अमीन में यू हैव अ सेंट्रल एटम एज नाइट्रोजन विच हैज 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 R ग्रुप एंड प्लस अ लोन पेयर. ऑन दिस बेसिस इफ यू चेक इट आउट यू विल फाइंड दैट नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है. Therefore, the hybridization will be sp3. That is 1. Shape क्या होगा? The shape has to be distorted tetrahedral. क्योंकि लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर तो दिखेगा नहीं, so the geometry will be pyramidal. Your shape is pyramidal. Geometry क्या होगी? Tetrahedral. Of course, due to the lone pair, it is distorted, मतलब थोड़ा सा खराब. So, shape is what it looks like is pyramidal, geometry is distorted tetrahedral, and the hybridization will be sp3 for all type of amines. चाहे एक R हो, चाहे 2 R हो, नाइट्रोजन के पास तो lone pair है ही. The next is, which reducing agent is preferred to convert nitrobenzene into amine? Nitrobenzene क्या होता है? RNO2, और आपको इसको अमीन बनाना है, यानी RNH2. तो यू कैन क्लियरली सी ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को डालना है, तो डेफिनेटली रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट लगता है वो बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन द बेस्ट ऑप्शन इज आयरन प्लस HCl. व्हाट इज द रीजन? एक तो आयरन बेटा चीप एंड इकोनॉमिकल, दैट इज 1, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है. बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? जब आप आयरन और HCl डालते हैं तो इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड यू गेट योर हाइड्रोजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन. ये जो फेरस क्लोराइड है ना, इसको जब आप पानी में डालोगे तो इट विल गिव यू फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो जो बनेगा सो बनेगा, लेकिन आपको HCl वापस मिल जाता है जो कि आप यूज़ कर लेते हैं. तो HCl बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है, बार बार आपको यहाँ से ये रीजनरेट मिल जाता है, तो आपको HCl बार बार डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज द HCl इज रीजनरेटेड. सो इन दिस स्टेप FeCl2 विच इज फॉर्म्ड हेल्प्स यू जनरेट बैक HCl. Fine. अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. ये हुआ एल्काइल हैलाइड. अमोनोलिसिस का मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन.
जब हम करते हैं तो क्या होता है, HX निकल जाता है और आपको RnH2 मिल जाता है। अब ये रिएक्शन आगे चलता जा सकता है क्योंकि एल्काइल हैलाइड आपके पास है, आपने एल्काइल हैलाइड यूज़ किया एक और मॉलिक्यूल, तो आपको ये R2NH मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आप एल्काइल हैलाइड डाल दो तो इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी में। तो सेकेंडरी भी बन सकता है, प्राइमरी भी बन सकता है, टर्शरी भी बन सकता है, विच मीन्स एक्चुअली मिक्सचर ऑफ अमीन्स बनेगा और ये इसका प्रॉब्लम है। सो this method is not advised because it leads to primary, secondary and tertiary amines. There's a mixture of amines which is difficult to separate. अब ये वाला प्रॉब्लम, हाउ कैन द अबव प्रॉब्लम बी रिजॉल्व्ड? अगर आपको ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है तो पहला तरीका क्या है, लिमिट यूज ऑफ एल्काइल हैलाइड अगर आप लेंगे, ये कम कर दो तो क्या होगा, 1 डिग्री अमीन बनेगा प्राइमरी। दूसरा क्या है, लिमिट यूज ऑफ अमोनिया, अगर आपने अमोनिया को कम कर दिया तो 3 डिग्री अमीन बनेगा प्रिडोमिनेंटली। तो अगर आपको 1 डिग्री बनाना है तो आप एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर दो कंटेंट, और अगर 3 डिग्री बनाना है तो आप अमोनिया को रिड्यूस कर दो। दिस इज द मॉडिफिकेशन विच कैन बी डन टू द अबव मेथड एंड द मेथड देन कैन बी यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट NCERT का क्वेश्चन है। Gabriel thalamide synthesis can be used only to prepare aliphatic primary amine। तो पहले प्राइमरी अमीन का जवाब क्या है, देर इज ओनली ये CO बेटा, इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन विल ड्राइव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन विल पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एंड यू हैव 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं ना बाय एन R ग्रुप। सिंस देर इज जस्ट 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन in the thalamide, therefore it can only form primary amine। पहला जवाब खत्म। दूसरा जवाब, एलिफैटिक अमीन, ये रिएक्ट करेगा या ये तो बेटा रिएक्ट नहीं करता ना। इफ यू रिमेंबर, देर इज अ रेजोनेंस हियर, देर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन halogen and benzene because of which this bond does not break। तो रिएक्शन एराइल हैलाइड के साथ नहीं करते हैं, यू कैन ओनली रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, so it will lead to aliphatic primary amine only। Which out of these two is more basic? Now basic किसी की बात जब हम करते हैं ना, amines are basic because there are proton acceptor की तरह act करता है due to lone pair। ठीक है, तो ये रहा अमीन, ये रहा आपका lone pair, और इस पर तुम्हारा प्रोटॉन जाके अटैक कर सकता है, that is why it is a base। अब क्या यहाँ पे लोन पेयर नहीं है ना, बट दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द कार्बोनिल कार्बन, विच मीन्स एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। और अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो जा रहा है तो आपको ये दिख रहा है कि आपके नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर बचा ही नहीं, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज लोन पेयर इज यूटिलाइज्ड इन इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, therefore not available, therefore proton cannot attack here, so it is not basic। lower amines are water soluble, higher amines बहुत सारे कार्बन का चेन are water insoluble, and aniline is also water insoluble। इसका जवाब क्या लिखेंगे, दिस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर, देयरफॉर इट इज सॉल्युबल, एंड R ग्रुप इज ऑल्सो लो, दिस हैज गॉट लेस हाइड्रोफोबिक। यहाँ पे ये लार्ज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्यों बोलते हैं इसको, कार्बन कंटेंट है ना बेटा, कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर कोवेलेंट, लार्ज हाइड्रोफोबिक, देयरफॉर इट इज नॉट सॉल्युबल। हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बनाता है लेकिन फिर भी सॉल्युबल नहीं है विथ वाटर बिकॉज ऑफ दिस। सेम इज ट्रू हियर, अगेन यू हैव अ बल्कियर हाइड्रोफोबिक पार्ट, देयरफॉर इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बेटा ये बनाएगा वाटर के साथ, बट सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द बल्कियर हाइड्रोफोबिक पार्ट। जितना ज़्यादा बल्कियर हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू बी लेस।
Arrange in increasing order of basic character. As I said, basic character is directly proportional to lone pair availability. लोन पेयर तो बेटा सब में है, पर अवेलेबल नहीं है ना. इसमें अवेलेबल है, इसमें तो ज़्यादा अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर पुशेस द इलेक्ट्रॉन. इसमें द लोन पेयर इज यूटिलाइज्ड बाय बेंजीन, सो लीस्ट अवेलेबल हो गया, विच मीन्स दिस इज मोस्ट बेसिक बिकॉज लोन पेयर इज हाईली अवेलेबल बिकॉज ऑफ द प्लस आई ऑफ आर. यहाँ पे रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बेंजीन टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन्स बाय माइनस आर इफेक्ट, हेंस हियर द लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू resonance. Therefore, this becomes least basic. Fine. इन तीनों को देखते हैं. Again, whether they are basic or not will depend on the lone pair. Lone pair तो तीनों के पास है, but यहाँ पे the lone pair is involved in resonance. यहाँ पे also the lone pair is involved in resonance. यहाँ पे it is not involved in resonance because बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है ना नाइट्रोजन. हियर द लोन पेयर इज अवेलेबल, सो दिस शुड बी मोस्ट बेसिक, दिस शुड बी लीस्ट बेसिक. क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन देगा ना नाइट्रोजन को, तो यहां पे लोन पेयर फिर भी थोड़ा अवेलेबल हो गया. यहां पे तो लोन पेयर बेंजीन ले ही रहा है बाय माइनस आर इफेक्ट. So this becomes most basic, this becomes least basic. That is, moving to the next question. Aniline must be acylated before bromination. अगर आप इसमें डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं ना बेटा, तो 3 ब्रोमो लग जाते हैं. आपको एक ही ब्रोमो लगाना है. 3 ब्रोमो क्यों लग जाता है? बिकॉज ऑफ द लोन पेयर एंड द एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. पर अगर इसके अंदर हम पहले से इसको असाइलेट कर दें, असाइलेट करने का मतलब है NH के साथ COCH3 लगा दो. कैसे? एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दो, तो क्या होगा? तब ये लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं रहेगा. क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा, रेजोनेंस में जाएगा, तो ओनली 1 ब्रोमो गेट्स अटैक्ड. ट्राई ब्रोमो नहीं बनता, यू एंड अप इन अ 1 ब्रोमो प्रोडक्ट बिकॉज दिस बिकम्स लेस एक्टिवेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 डिग्री अमीन्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन इज बाउंड टू 3 एल्काइल ग्रुप्स, आर वाटर इनसॉल्युबल. तो बेटा इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं. Nitrogen has not got any hydrogen attached to it, so there is no interaction between them. So, water insoluble because there is no H bond between water and 3 degree amine. Second part of the question has a low boiling point. Now, boiling point is directly proportional to intermolecular force of attraction. एक टर्शरी अमीन और दूसरा टर्शरी अमीन के बीच में जो इंटरैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं, वीक डाइपोल डाइपोल है. बिकॉज इट इज अ वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट हैज टू बी लो. अगेन द आंसर इज देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 3 degree amine molecules, so the boiling point has to be low. Arrange in increasing order of boiling point, which is directly proportional to intermolecular force of attraction. इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर फर्क क्या है? दिस विल फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्यों? बिकॉज ऑफ 2 hydrogens bonded. This will form less hydrogen bonds because there is 1 hydrogen. बेटा कार्बन नंबर सेम है, 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है,
4 कार्बन इसमें भी. You can only compare if they have got a similar carbon chain. इसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है. There is no hydrogen bond. इसका मतलब इसमें बॉइलिंग पॉइंट वीकेस्ट होगा. तो इन तीनों में से इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसमें वीक बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो गया. अब बचा ये अल्कोहल में बेटा यू हैव OH एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. इसलिए यू हैव स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड. चाहे एक ही हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी इसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. देयरफॉर दिस विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आउट ऑफ दीज 4. तो ये हुआ सबसे आगे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, एंड द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट विल बी फॉर अल्कोहल. डिस्पाइट द क्वेश्चन पूछने का टेढ़ा तरीका होता है CBSE में. OH has just one hydrogen bonded to oxygen, while primary amine has 2 hydrogens bonded to nitrogen. Then which has the higher boiling point? तो generally आप confused हो जाते हो. You would say this. The answer is no. Hydrogen bond here is less but stronger. So the boiling point is stronger. Bond को तोड़ने में energy ज़्यादा लगेगी. So intermolecular force of attraction is hydrogen bond, but stronger hydrogen bond. That is why इसका boiling point will be the highest. Coming to the next set of questions. नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन. ये रहा एनिलीन. नाइट्रेशन हम जब करते तो क्या डालते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अब इसमें यू हैव लार्ज एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन. नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बट देर इज अ प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव जो कि जाके लोन पेयर पर अटैक. जब ये लोन पेयर पे अटैक कर लेता है तो क्या बन जाता है? NH3 विथ अ पॉजिटिव चार्ज. अब NH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज बन जाता है तो देयर इज नो लोन पेयर. लोन पेयर नहीं है तो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसके कारण यू हैव अ मेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड एज एन एनिलीनियम आयन. Formation of anilinium ion leads to meta product formation in high percentage. And why is this formed? Due to large excess of H positive. Why is this formed? Because you have a nitration which requires highly strong acids in concentrated form. Next, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. बेटा Friedel-Crafts reaction तो 2 टाइप के होते हैं ना, alkylation, acylation. ये नहीं पूछा. Any type, which means चाहे alkylation हो या acylation हो, it will have anhydrous AlCl3 which is a Lewis acid. Now इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये है लुइस बेस. अब बेस और एसिड तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं ना. जब ये बेस और एसिड आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो NH2 वाला लोन पेयर AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है एंड देयर इज अ सॉल्ट फॉर्मेशन. और जब ये सॉल्ट फॉर्मेशन होता है तो लोन पेयर तो है ही नहीं. क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो रिएक्टिविटी लो हो जाती है. दिस बिकम्स डीएक्टिवेटिंग, देयरफॉर लो रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव. एंड द रीजन इज दिस इज अ एसिड, दिस इज अ बेस, दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट where nitrogen का lone pair is donated towards forms a coordinate bond with AlCl3. तो lone pair ही नहीं है तो reactivity automatically control हो जाएगी. Done. Coming to the last question on this sheet. Benzene diazonium salt stable है, जबकि ethyl diazonium salt को बेटा हम ऐसे लिखते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन है can be reduced by resonance. There is a resonance with the pi electron clouds of benzene and the benzene ring gives electrons via plus R. But यहाँ पर also it gives the electrons but via plus I. और हमेशा resonance effect is more than inductive effect. That is why यहाँ पे ये less stable है because of inductive effect. ये more stable है due to resonance. Clear? Last set of questions.
मिथाइलअमीन इन वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद FeCl3 टू फॉर्म अ PPT। ये क्वेश्चन बहुत जनरली बच्चों को अजीब लगता है। मिथाइलअमीन को जब वाटर में डालूंगी बेटा तो वाटर का H पॉजिटिव इधर आ जाएगा। वाटर के पास दो आयंस है ना, H पॉजिटिव एंड OH माइनस, और ये रहा लोन पेयर। तो जो ये H पॉजिटिव है विल गो एंड अटैक द लोन पेयर। तो कंक्लूजन क्या होगा, CH3 NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और उसके साथ आपके पास OH माइनस आ जाएगा। दैट इज वाई इट बिकम्स अ बेसिक सोल्यूशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज OH आयंस। अब आप इसके अंदर फेरिक क्लोराइड डाल रहे हैं, तो जब आप इसके अंदर फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो फेरिक क्लोराइड OH आयन से रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्राउन PPT बना देगा। So it is because of OH ions available, methylamine is basic. It is a proton acceptor, giving you hydroxyl ions released, which react with FeCl3 to give you hydrated ferric oxide, which is brown colored PPT. Last, amines are less acidic than alcohols. Now what are acids? Acids are H positive डोनर्स। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है एंड H पॉजिटिव इज रिलीज्ड। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचता और H पॉजिटिव रिलीज नहीं होता। तो योर की आंसर इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, देयरफॉर H पॉजिटिव ऑफ अल्कोहल is easily released. Fine. With this I come to the end of the video on reasoning questions. Before I pack up, please pay attention to this last announcement. Class 12 CBSE students, all the best for your exam on 24th. Your English exam is on 24th. That's your first exam. Now, my exam, that is your chemistry exam, is on 28th of February. You have 3.5 days. How to handle and how to write is the video which I will be posting on 24th of February, just before the exam, or 23rd. So please wait for my video on 23rd or 24th February. Start preparing for your chemistry in these 3.5 days after watching this video. Is just a request. It would help you to channelize your 3.5 days, and it would also help you how to present your paper. I would give you tips on presentation of paper and how to handle chemistry in 3.5 days. All the best. Do very well in life. Stay connected. Stay blessed. Do share the video. Bye.